Am I audible? Yes, ma'am. Good morning. Okay, good morning. In the last class, we were talking about we have studied the simple squamous epithelium, then we were talking about the stratified squamous epithelium. ठीक है, सिंपल squamous देख लिया, simple cuboidal देख लिया, then simple columnar देख लिया. ठीक है, where there are chances of the friction. ठीक है, and there is the requirement of the protection in that area. There is presence of the stratified squamous epithelium. ठीक है, and this stratified squamous epithelium, particularly in keratinized epithelium, there is formation of the keratin by the cells of the stratified epithelium, and these cells, they lead to the formation of keratin that forms the coating over the epithelium, thus that protect the this body surface or the organs where there are chances of the friction or where there are chances of the tearing. Okay, so in that area there is presence of the stratified squamous epithelium, particularly keratinized. Okay, so keratin, actually that is the protein. Keratin क्या है? That is the protein and that gets secreted by the cells. इसमें क्या होता है, in keratinized stratified squamous epithelium, by the lysis of or by the death of the cells, that keratin जो है that comes out from the cell and forms the coating. ठीक है, तो अभी आपको पावर पॉइंट में दिखा दूंगी मैं आपको. ओके, ठीक है, तो we are just I'm explaining the stratified squamous means the upper layer is having squamous epithelium. Okay, but in the basal part, the shape of the cell is different from that of the superficial layer or surface layer. Okay, so why this is called as stratified squamous epithelium? Because the upper layer or surface layer is having squamous epithelial cells. Okay, the cells are flattened cells in case of upper portion or superficial region. Thus, it is called as stratified squamous epithelium. Although the basal cells, they are the columnar in shape also. ठीक है, तो how we decide that this is stratified squamous epithelium? On the basis of surface. तो surface की जो layer होगी, that may be squamous, cuboidal, तो उस basis पे अपन बोलेंगे कि the particular epithelium is particular type. ठीक है, तो अगर squamous है तो stratified squamous हो जाएगी, cuboidal है तो stratified squamous cuboidal हो जाएगी, और अगर columnar surface की है तो अपन कह सकते हैं that is the stratified columnar cells epithelium. Okay, now regarding this PowerPoint of slide is moving, नहीं ना? Yes, ma'am. मूव कर रही है? Yes, ma'am. फिर से उसको सेट करने का जरूरत नहीं. ओके, तो यही आप देख रहे थे कि केराटिनाइजेशन जो है, सॉरी, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम दैट इज हैविंग 5 लेयर्स. ठीक है, एंड फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर. ठीक है, फ्रॉम बेसल पार्ट टू सरफेस मींस अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऊपर तक स्टार्ट करेंगे. So these are the different layers of the stratified squamous epithelium. As I already told you, the first one is the stratum, this basal. Another name for stratum basal? Stratum germinativum. Stratum Germinativum. Germinativum. Okay. So because these cells, they are having mitotic activity, these cells they give rise to the cells of the upper region. Okay, तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ. Generally these cells are columnar in shape. These are large cells and shape wise these are columnar cells, and these cells they rest on the basal membrane. बाकी की नहीं करेगी. ठीक है, hence the epithelium is stratified epithelium. Okay, आप देखोगे then stratum spinosum, the cells above this basal, the large cells, polyhedral cells दिख रहे हैं आपको. These cells they are attached to each other by the desmosomes. ठीक है, तो desmosomes में आपको बताया था मैंने कि filaments होते हैं, anchoring filaments, U shape और U pin shape जो ligaments, sorry, filaments होते हैं. ठीक है, they are also known as keratin filaments और tonofilaments. ठीक है, जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, अभी प्रैक्टिकल आप लोग को शुरू नहीं किया है हिस्टोलॉजी का, फॉर H&E स्टेन स्लाइड्स, जो स्लाइड आप जो इसमें देखते हो अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो वी वांट सम प्रोसेस टू सी द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप. उसमें स्टेनिंग होती है, उसमें प्रोसेसिंग में आप उसको डिहाइड्रेशन करोगे, उसको क्लियरिंग करोगे, देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर. ठीक है, तो वो भी आपको नहीं पता है. तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंड, दीज सेल्स दे गेट श्रिंक, क्योंकि क्या होता है इसमें जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं दैट लीड टू द श्रिंकिंग ऑफ द सेल्स.
तो आज जब आप देखते हो अंडर स्लाइड, तो क्या अंडर माइक्रोस्कोप, तो देयर आर सम फिलामेंट्स अपीयर हियर, क्यों स्लाइड श्रिंक कर गई, लेकिन जो फिलामेंट्स थे वो दिखाई देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रिकली लेयर या प्रिकल फॉर्म में, या थॉर्न जैसे कह सकते हैं अपन, स्पाइन लाइक हो सकते हैं. हेंस द नेम हैज बीन गिवन टू दिस लेयर एज स्ट्रैटम स्पाइनोसम. ठीक है, ये क्लियर हो गया. व्हाई द नेम इज स्ट्रैटम स्पाइनोसम? बिकॉज ऑफ द presence of this filaments that appear under light microscope. Okay, तो इसका नाम हो जाएगा stratum spinosum, and this is not the single layer. There are number of layers, even 10 layers or more than 10 layers are there of the stratum granulosum. ठीक है, above this stratum granulosum, above this stratum spinosum there is stratum granulosum. Why the name has been given stratum granulosum? Anybody? पिक्चर में आप देख रहे हैं stratum granulosum, क्यों बोला गया इसको? See the picture. हर्षिका, इशिता, जल्दी बताओ स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम क्यों कहेंगे इसको? Granules present. Granules present है, देखो ना, that appears granules. Actually, this cells of the stratum granulosum, they contain the keratohyalin granules. Here it has been written keratohyalin granules. These keratohyalin granules are the precursor of the keratin. ठीक है, यहां से ये सेल क्या सिंथेसाइज करना शुरू कर देती है? ग्रैन्यूल्स, केराटिन. ठीक है, तो keratohyalin granules are the precursor of the keratin. ठीक है, which appears in this cells of the stratum granulosum. यहाँ नहीं दिखाई देगा. ठीक है, यहाँ granules clearly दिखाई दे रहे. ठीक है, तो hence the name has been given stratum granulosum. ठीक है, and the cells are also not in the single layer, they are also multi-layered. ठीक है, तो ये भी सिंगल लेयर नहीं होगी, more than one layer, approximately 4, 5 और 10 तक layers होती है. ओके, above this stratum granulosum. ठीक है, अच्छा, these all are the layers of stratified squamous epithelium. Okay, तो पहला stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum. Above the stratum granulosum is the stratum lucidum. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको हाइलिन टाइप की दिख रही होगी, थोड़ा इसमें ग्लासी अपीयरेंस आप देख रहे हो. स्ट्रैटम जो लूसिडम है, दिस इज द स्ट्रैटम लूसिडम. ठीक है, तो दिस स्ट्रैटम लूसिडम लेयर इज प्रेजेंट ओनली इन नॉन हेयरी स्किन. आपका जो पाम होता है, ठीक है, पाम है अपने हाथ का जो हथेली है, ठीक है, उसमें हेयर नहीं होते, तो इन दैट एरिया देयर इज प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रैटम लूसिडम, एंड दिस स्ट्रैटम लूसिडम कंटेन्स द एलिडीन ग्रैन्यूल्स, जो मैं आपको आगे बता दूंगी. ठीक है, कंटेन्स द एलिडीन. यहाँ पे केराटोहाइलिन था, यहाँ पे क्या था? एलिडीन ग्रैन्यूल्स. ठीक है, amorphous substance होता है. एलिडीन ग्रैन्यूल इज जस्ट लाइक amorphous substance, and this layer is only present in non hairy skin. ठीक है, कहाँ पे होगा? नॉन हेयरी स्किन में होगा, या वहां पे होगा जहां पे बहुत ज्यादा थिक केराटिन सिक्रीट हो रहा है, लाइक हूफ. ठीक है, इन दैट एरिया देयर इज प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रैटम लूसिडम. ओके, देन द अपर लेयर इज द स्ट्रैटम कॉर्नियम. ठीक है, स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है दैट इज द फ्लैटेंड सेल्स. ठीक है, रिप्रेजेंट द दिस squamous epithelium. ठीक है, the true stratum corneum actually that is dead cells. ठीक है, stratum corneum जो लेयर सेल्स होंगी, द सेल्स ऑफ द stratum corneum they are not live cells, because इसमें क्या होता है? कैरियोलाइसिस हो जाती है, एंड these cells they are ready to rupture. ठीक है, एंड रेडी टू डिस्कमेशन आपको दिखाई दे रहा है, एंड द सेल्स सिक्रीट द केराटिन. ठीक है, तो ये इस जगह को अपन बोल सकते हैं सेलुलर डिसजंक्शन, क्योंकि यहाँ से सेल्स निकल गई बाहर, एंड दीज सेल्स आर एक्चुअली दे आर गोइंग टू डेड. कॉर्नियम आर नॉट लाइव सेल्स बट दे आर डेड सेल्स. ठीक है, कभी भी ट्रू स्ट्रैटम कॉर्नियम में आपको वो नहीं मिलेगा, दिस न्यूक्लियस नहीं मिलेगा. ठीक है, डिसइंटीग्रेशन गेट स्टार्ट हियर. ठीक है, इन द स्ट्रैटम कॉर्नियम. बट ऑल्दो स्ट्रैटम लूसिडम हो गया, ग्रैनुलोसम हो गया, ये सब लाइव सेल्स है, बट अपर जो स्ट्रैटम कॉर्नियम होगा दैट इज नॉट द लाइव सेल्स. ठीक है, अबाउट द लेयर्स ऑफ द दिस स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. पांचों लेयर क्लियर हो गई. स्ट्रैटम बेसल. इशिता बताओ कौन कौन सी लेयर होती है फ्रॉम लोअर टू अपर एस्पेक्ट, जल्दी जल्दी. मैम स्ट्रैटम बेसल, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम एंड स्ट्रैटम बेसल के बाद क्या होगा? स्ट्रेटम स्पाइनोसम. हाँ, फिर स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम,
stratum lucidum, and stratum corneum. Stratum lucidum is present in all the this skin or in particular area of the skin. Non-hairy skin part. नॉट हेयर स्किन कोड, ठीक है. तो एवरीथिंग हैज बीन रिटन हियर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया. द डीप लेयर ऑफ सेल्स नेक्स्ट टू द, ये आप पावर पॉइंट ले लेना, ठीक है. इसमें इतना सारा लिखा है, ये बताने की जरूरत नहीं है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, ठीक है. कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ. In H&E staining, during the processing, the cytoplasm between desmosomes attachment shrinks, but the cell remains attached at the small spiny processes, ठीक है, radiating from the surface of the cell. Thus, appearance gives rise to the number of the layers, spiny layer, ठीक है. तो hence this stratum spinosum is also known as prickly layer. Spinosum भी कहते हैं, prickly layer भी कहते हैं, okay. Why? Because of the spines of the tonofilaments, ठीक है. The spiny process cytokeratinized filaments term tonofilaments which are condensed at the site of desmosomes. तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया. स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम देखोगे आप, तो इसमें क्या मेनली प्रेजेंस ऑफ द peculiar feature of the stratum granulosum, presence of the keratohyaline granules. सबके कुछ ना कुछ फीचर्स है, ठीक है. keratohyaline granules. Stratum basal में माइटोटिक फिगर्स दिखाई देंगे. These cells are not flattened cells, these are cuboidal और columnar cells होते हैं. Stratum basal. Stratum spinosum में tonofilaments होंगे, ठीक है. And stratum granulosum में presence of the keratohyaline granules, ठीक है. And stratum lucidum में alidine granules that is present in the non-hairy skin, okay. Keratinization process बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, ओके. तो स्ट्रैटम डिसजंक्शन जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स इन आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्ट्रैटम कॉर्नियम बिकम लूज एंड सेपरेट, ठीक है. तो दिस पार्ट जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, दैट इज नोन एज स्ट्रैटम डिसजंक्शन, ठीक है. स्ट्रैटम सुपरफिशियल कब कहते हैं? इन केस ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. आपको बताया था कि केराटिनाइज्ड में सेल्स डेड हो जाती है, ठीक है. बट इन केस ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, देयर इज नो डेथ ऑफ द cells of the stratum corneum takes place. In that area, this upper layer is known as stratum superficial, ठीक है. तो ये live cells, stratum superficial are live cells, whereas stratum corneum are dead cells. ये आपको पता होना चाहिए. stratum corneum are true stratum corneum are dead cells, ठीक है. stratum superficial is present in case of non keratinized epithelium, ठीक है, non keratinized stratified squamous epithelium. And here there is a cell life also, okay. Cells have their nuclei as they migrate to the surface of the epithelium, okay. Then stratified cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium which is having two layers, that is known as stratified cuboidal epithelium. The upper layer, superficial layer जो है is cuboidal in shape, ठीक है. irrespective of basal layer, आपको मेन इसमें भी यहाँ भी cuboidal दिख रही है although, ठीक है, but the upper superficial layer is cuboidal in shape. This is known as stratified cuboidal epithelium. Actually generally जो है stratified cuboidal is present in biform, मतलब bi stratified means only say double layer is there, not more than double, ठीक है. हमें क्यों जरूरत है इसकी? सेंस ऑफ एनीबडी? सेंस ऑफ स्मेल. वेयर दिस olfactory mucosa are present in which part of the body? olfaction के लिए नोज में, तो नेजल कैविटी में. तो वेयर? पूरी नेजल कैविटी में कि आगे या पीछे? थोड़ा बताया होगा आपको स्प्लैंक्नोलॉजी में. नेजल कैविटी हैज 3 रीजन. बिल्कुल आगे की तरफ रहेंगी, नॉस्ट्रिल के पास रहेंगी ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, या बीच में रहेगी, या बिल्कुल पीछे की तरफ रहेगी. आपको सेंस ऑफ स्मेल करना, तो आप क्या करते हो? जलने की स्मेल आ रही है, बोलते ना घर में जलने की, तो आप क्या करोगे? हम पीछे का रहेगा ना, पीछे होगी ना, तभी तो आप सांस लोगे, बोले हाँ कुछ जलने की बदबू आ रही है ना, घर में होता है ऐसा, ओके. तो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा जो है दैट इज प्रेजेंट इन द कॉर्डल पार्ट ऑफ द दिस नेजल कैविटी, नॉट एंटीरियरली, ठीक है. एज वेल एज टर्मिनेट बोन्स जो है वहां भी जो
जिसको अपन नेजल कॉन्के कहते हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा, ठीक है। तो इसका भी डायग्राम नेक्स्ट में दिखा देती हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ द सेंसरी एपिथेलियम, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी का आप देखोगे तो देयर आर सपोर्टिंग सेल्स आर देयर, ठीक है। ये जो पिंक कलर की दिखाई है दीज आर दी नर्व सेल्स, ठीक है, सेंसरी सेल्स कह सकते हैं। इनका ये एक्सॉन है, ठीक है, ये डेंड्राइट से रिसीव करेंगे, ओके, यहाँ से, और ये एक्सॉन लेके क्या चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ दिस नर्व। ये आपको मैंने शायद स्कल पढ़ाया था, और क्या स्कल नहीं, क्रेनियल नर्व्स पढ़ाई थी तब बताया था, ठीक है। तो हियर दिस फॉर्मेशन ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेंसरी एपिथेलियम, ठीक है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा। ये एक्सॉन जा रहे हैं, दिस आर द रिसेप्टर सेल्स, न्यूरोसेंसरी सेल्स है, ठीक है। तो सेंस ऑफ जो स्मेल होगी यहाँ से होके कहाँ चली जाएगी, ऑल्फैक्टरी नर्व जो है कहाँ से पास होती है, फ्रॉम वेयर दिस ऑल्फैक्टरी बल्ब्स दैट रीच अप टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब, हाउ इट ट्रैवर्सेस, कैसे कहाँ जाएगी ये ऑल्फैक्टरी नर्व, it passes through गुड, है ना, ठीक है। पीछे का भूलना नहीं है आपको, हिस्टोलॉजी और ग्रॉस एनाटॉमी सब मिले हुए हैं, ठीक है। तो पूरा आपको याद रहना चाहिए, जो पढ़ लिया है वो भी आपको बार बार रिवाइज करना है, आपके दिमाग में होना चाहिए, ओके। तो sensory contains supportive cells and specialized receptor cells. This type of epithelium found in retina of eye, internal ear में भी होगी, olfactory mucosa and as well as taste buds, ठीक है, taste buds में भी होंगे। अच्छा, name the this papillae which are having taste buds, जल्दी से, papillae of the tongue, anybody? Name the papillae of the tongue having taste buds. Some are mechanical. पढ़ाया होगा आपको, टंग पढ़ा दी ना, किसको बनेगा मैम? फोलिएट, फंजीफॉर्म, सर्कमवेलेट, हाँ, गुड, ठीक है। और फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म में नहीं होता बेटा, फिलीफॉर्म आर दिस मैकेनिकल पैपिले, ठीक है। फिलीफॉर्म हो गया, और कोनिकल पैपिले जिसको अपन लेंटिकुलर एंड कोनिकल पैपिले जो टोरस लिंगमे में होते हैं, दीज आर नॉट हैविंग टेस्ट बड्स, फिलीफॉर्म में भी नहीं होंगे और कोनिकल एंड लेंटिकुलर में नहीं होंगे, एंड फोलिएट में होंगे, फंजीफॉर्म पैपिले में होंगे, एज वेल एज सर्कमवेलेट और वेलेट पैपिले, दे आर आल्सो हैविंग टेस्ट बड्स, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड दिस कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम अपन जिसको कहेंगे, उसमें बेसल सेल्स होंगी एंड लार्ज सेल्स दे आर हैविंग सीलिया, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। लेवल उनका अलग अलग होगा, उसको फिर से डिस्क्राइब करने की जरूरत है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, इज इट क्लियर? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा था? नहीं, नो नहीं, कुछ नहीं, मैडम आगे बढ़ते जाए बस, है ना। क्यों अंकित? यस मैम, क्लियर था। क्लियर है ना? तो तुम लोग बोला करो, बीच में माइक खोल दिया करो। यस मैम, ठीक है, चलो। बिकॉज दिस ग्लैंड्स दे आर ऑल्सो डिराइव फ्रॉम एपिथेलियम, मे बी एंडोडर्म। तो जैसे आपने सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ी है, ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड जनरली दे आर डिराइव फ्रॉम द ओरल म्यूकोजा, वहां से माइग्रेट करते सेल्स, ठीक है, एंड दे गेट देयर डेफिनेट पोजीशन, वहां पे ये माइटोटिकली डिवाइड होगी एपिथेलियल सेल्स, एंड दीज सेल्स अलोंग विद द स्ट्रोमल सेल्स डिवाइड कर करके, अगर अपन डेवलपमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो स्ट्रोमल सेल्स होंगी जो मेसोडर्म से डिराइव हो रही, दे फॉर्म द दिस कैप्सूल ऑफ द दिस ग्लैंड एज वेल एज ग्लोब्यूल्स की जो डिमार्केशन करना होगा पैरेन्काइमेटस सेल्स को, ठीक है, डिवाइड करना होगा, दैट इज बाय द स्ट्रोमल सेल्स, ठीक है। तो जनरली अपन बात करेंगे अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, तो मींस ग्लैंड जो ग्लैंड से दे आर डिराइव फ्रॉम द एपिथेलियम, एंड एज अ नेम इंडिकेट ग्लैंडुलर मींस समथिंग रिलेटेड विद द सिक्रीशन। तो दीज सेल्स दे में भी यूनिसेलुलर, एक ही सेल हो सकती है, या मल्टी सेलुलर सेल्स हो सकती है, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होता है, दैट सिक्रीट द मटेरियल। डक्ट के साथ हो सकता है तो अपन बोलेंगे एक्सोक्राइन, बिना डक्ट के होगा तो उसको कहेंगे एंडोक्राइन, ओके। तो इफ देयर इज डक्ट
तो exocrine, ठीक है, and that via the duct the secretory material that comes to the surface, that comes out to the surface. और अगर endocrine है तो endocrine always and vicinity of the this endocrine glands or cells there is presence of the capillary network or blood vessels, ठीक है, होना जरूरी है. क्यों? Because these cells they directly pour their secretion, ठीक है, directly into the blood. तो हमेशा अगर एंडोक्राइन की बात करेंगे तो आपको एडजेसेंट में आपको या तो साइनोसाइड्स मिलेंगे या ब्लड कैपिलरीज मिलेगी, जिसमें कि एंडोक्राइन सेल्स जो है अपना सिक्रीशन दैट इज हार्मोन सिक्रीट कहाँ करेगी? डायरेक्टली टू द ब्लड. तो ब्लड जब पास में होगा, आसपास होगा, तभी तो उसमें सिक्रीट करेगी, ठीक है. और एक्सोक्राइन की बात करेंगे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट समवेयर एल्स, ठीक है, जनरली सब एपिथेलियल एरिया में होते हैं एंड दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन द सरफेस, ठीक है, दे पोर देयर सिक्रीशन टू द सरफेस बाय द प्रेजेंस ऑफ द डक्ट, ठीक है. और अगर वेल डेवलप्ड डक्ट सिस्टम होगा, ब्रांच होगा, काफी प्रोलिफरेटिव कह सकते हैं या काफी ज्यादा ब्रांचिंग दिखेगी, देन दैट ग्लैंड इज कंसिडर्ड एज द कंपाउंड ग्लैंड. ओके, तो ये तो मैं जनरल आपको इंट्रोडक्शन बता रही थी रिगार्डिंग ग्लैंड्स. लिखा हुआ आप लोग देख लो. Glandular epithelium is a type of epithelium tissue which covers the gland both exocrine and endocrine, ठीक है. ये मैंने बताई दी आपको, ठीक है, जो लिखा है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड्स, दिस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में अपन कह सकते हैं कि वेदर द ग्लैंड इज सिंगल ग्लैंड है या मल्टीपल सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, दिस एल्वुलार है, एसिनार है, या जो अपन कहेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप साइज, इसके हिसाब से अपन कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल बेसिस में देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड. और मॉर्फोलॉजिकल में यूनिसेलर ग्लैंड्स भी हो सकती है, मल्टी सेलर ग्लैंड्स भी होती है. बेस्ट एग्जांपल ऑफ द यूनिसेलर ग्लैंड इज, सबको पता है, गॉबलेट सेल्स, ठीक है. गॉबलेट सेल्स आर सिंगल सेल्स, ठीक है. द सिक्रीशन दैट poured in the upper part and nucleus pressed towards the lower part giving the goblet appearance, ठीक है. hence the name given goblet cells. तो unicellular gland हो गए. multicellular glands में aggregation of so many epithelial cells are there, ठीक है. they may form the acini, they may form the alveoli, they may form the tubular structure, जैसे कि सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच हो जाएगा, सिंपल ट्यूबुलर कॉइल्ड हो जाएगा, तो वो कहलाएगी मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स. ओके, तो फर्स्ट बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गया, तो उसमें ट्यूबुलर भी हो सकती है, उसमें एसिनार हो, एल्विलार हो सकता है, ठीक है. और अगर यूनिसेलर की बात करेंगे तो ओनली सिंगल सेल होगा. देन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सिक्रीटरी प्रोडक्ट, जनरली जो अपन अगर एक्सोक्राइन की बात करें तो नेचर ऑफ द सिक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रीशन जनरली क्या होता है, कोई बताएगा? 2 टाइप्स ऑफ सिक्रीशन एक्सोक्राइन ग्लैंड से, एनीबडी? नेचर, सिक्रीशन का नेचर एक पानी जैसा होगा, ऑयली एंड वाटरी दोनों हैं. ऑयली को और कह सकते हैं Serous and mucus. गुड, ठीक है. तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सिक्रीटरी प्रोडक्ट, या तो सीरस पानी जैसा होगा या स्टिंगी होगा. म्यूकस सिक्रीशन देखा है ना, तो या तो म्यूकस टाइप का होगा और एक्वस होगा, ठीक है, वाटरी सिक्रीशन होगा. तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सिक्रीशन द सेल्स दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3. वन इज सीरस, अनदर इज म्यूकस, एंड थर्ड जिसमें मिक्सिंग होगी. कुछ सेल्स सिक्रीट करेंगे सीरस, कुछ सेल्स करेंगे म्यूकस, दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी. या फिर कुछ सिक्रीटरी यूनिट लाइक एल्वुलाई, एक एल्वुलाई सिक्रीट करेगी म्यूकस, दूसरी वाली एल्वुलाई सिक्रीट करेगी एसिनाई में कह सकते हैं दिस सीरस. तो मिक्सिंग हो गई दोनों की जब डक्ट में आएंगे, तो दैट इज थर्ड कैटेगरी, मिक्स टाइप ऑफ दिस ग्लैंड्स, ठीक है. तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सिक्रीटरी प्रोडक्ट क्लासिफाइड एज, वन इज सीरस, अनदर इज म्यूकस एंड थर्ड इज मिक्स्ड, मींस दोनों ही होगा, सीरस सिक्रीशन भी होगा और स्टिंगी दैट इज म्यूकस सिक्रीशन भी होगा, ठीक है. तो देन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिक्रीशन, हाउ द सिक्रीटरी मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम द सेल, सेल से बाहर कैसे आ रहा है, ठीक है. अपने आप तो सेल से बाहर आएगा नहीं, कुछ ना कुछ टेक्निक चाहिए दैट लीड टू द कमिंग आउट ऑफ द सिक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम द सेल, ठीक है. तो कभी कभी तो केवल सिक्रीटरी मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम द सेल ओनली. अगर कोई ग्रैन्यूल है मान लो, तो वो केवल बाहर आया, कोई साइटोप्लाज्म का एडिशन नहीं हुआ, तो दैट टाइप ऑफ द सिक्रीशन इज नोन एज, किसी को पता है? बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिक्रीशन 4 टाइप की बताओ. एपोक्राइन, यूरोक्राइन, होलोक्राइन.
सबसे पहले अपन कहेंगे मीरोक्राइन, फिर एपोक्राइन, देन होलोक्राइन, देन साइटोक्राइन। ठीक है, साइटोक्राइन मींस ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है ओनली। ठीक है, तो जैसे अपन ने एपिथेलियम में बताया था मेलानिन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, तो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द मोड ऑफ सिक्रीशन में आ जाएगा। तो साइटोक्राइन मींस एक सेल से दूसरे में ट्रांसफर होना मटेरियल का। ओके, तो फर्स्ट हो गया मीरोक्राइन, सेकंड हो गया एपोक्राइन, देन थर्ड इज होलोक्राइन एंड फोर्थ वन इज द साइटोक्राइन। ओके, तो वन बाय वन अपन देखते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग द बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जो ये वाला था, द ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आपको बता ही दिया, गॉबलेट सेल्स आर देयर। ठीक है, कंप्राइज्ड ऑफ अ सिंगल सिक्रीटरी सेल इन अ नॉन सिक्रीटरी सरफेस एपिथेलियम। जनरली अपन जीआई ट्रैक्ट में देखेंगे, जब पीछे की तरफ जाते, रेक्टम की तरफ जाएंगे, जितना उतना सिक्रीशन बढ़ता जाता है बिकॉज द नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स इंक्रीज। ठीक है, और ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? दीज गॉबलेट सेल्स दे आर प्रेजेंट among the epithelium। दूसरी जो सेल्स एपिथेलियल सेल्स, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होती है, उनके बीच बीच में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये अलग से कहीं से नहीं आती, एपिथेलियम के बीच बीच में ही रहेगी। कौन सी? गॉबलेट सेल्स। ठीक है, बिकॉज दी सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। ठीक है, तो एपिथेलियम जो कॉलमनार एपिथेलियम चलेगी, उनके बीच में आपको काफी सारी दिस यूनिसेलुलर ग्लैंड्स मीन गॉबलेट सेल्स दिखाई देगी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगी, लार्ज में होगी। स्मॉल में लेस नंबर होगा एंड देयर इज रिक्वायरमेंट इज मोर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो वहां पे ये आपको बीच बीच में एपिथेलियल सेल्स के बीच में दिखाई देगी। ओके, these are scattered throughout the epithelial lining of the tubular organ of the GI tract हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगा। ठीक है, एंड अदर ऑर्गन्स आल्सो। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड में कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीबॉडी? नो मैम। जैसे नाम आएगा यूनिसेलुलर ग्लैंड तो आपको पता होना चाहिए गॉबलेट सेल्स। तो अगर इस गॉबलेट सेल्स की अगर सेलुलर फीचर देखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर फीचर, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सेल्स का जो अपर पोर्शन है दैट इज वाइड एंड नैरो। ड्रॉपलेट होता है, ड्रॉपलेट अपन बनाते हैं ऊपर पॉइंटेड बनाते हैं, नीचे वाइड बनाते हैं, ड्रॉप बनाते हैं ना आप। टीयर ड्रॉप्स डायग्राम बनाते हो तो कैसे बनाते हो? अपर साइड में देयर इज नैरो पोर्शन और नीचे वाइड रहता है। इसका उल्टा कर दो। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स में क्या हो जाएगा? अपर पोर्शन इज वाइड whereas basal portion is narrow. ठीक है, why? Because in the upper portion there is aggregation of the secretory material. ठीक है, accumulation of the secretory material, and lower portion, ठीक है, because of the pushing of this nucleus towards the basal part. ठीक है, तो upper part is wide and lower is narrow and giving the goblet appearance. Okay, इसके डायग्राम है पे कहीं देखते रहिए। फिर से हो गया कंप्राइज ऑफ ए सिंगल सिक्रीटरी सेल्स। कहाँ का प्रेजेंट होंगे? जीआई ट्रैक्ट में हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अच्छा, दिस एपोड सेल्स। ठीक है, अगर अपन बात करें हार्मोन की, ये तो अपन ने एक्सोक्राइन में बता दिया कि जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ द गॉबलेट सेल्स। एपोड मींस एमाइन प्रीकर्सर अपटेक एंड डीकार्बोक्सिलेशन सेल्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म एपोड? amine precursor uptake and decarboxylation cells. Actually these are the some cells, they are scattered in the different organs, and these cells they secrete the their hormones, small polypeptide chain hormones. Like अगर अपन देखेंगे बीटा सेल्स, ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ विच secrete the बीटा सेल्स से क्या secrete होता है? इंसुलिन। ठीक है, तो these can also be considered as the cells under the apod, because आपने देखा होगा पैनक्रियाटिक आइलेट्स में, है ना, ऐसा नहीं है कि पूरा एक वो है कंप्लीट पैनक्रियाज इज एंडोक्राइन, बट सम सेल्स दे आर स्कैटर्ड अमंग द एक्सोक्राइन। आपने देखा होगा उनके जो इंटर एसिनार स्पेस होंगे, एसिनाई होते पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन सिक्रीशन के लिए। एक तो होता है पैनक्रियाज से एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, एक्सोक्राइन हो रहा है जिसको अपन कहेंगे। दूसरा होता है हार्मोन, तो हार्मोन जहां से सिक्रीट हो रहा है दैट इज नोन एज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो दिस एरिया में अपन, क्योंकि सेल्स स्कैटर्ड होती है, एज सच पूरा का पूरा सिस्टम नहीं है। जैसे एड्रिनल की बात करेंगे तो कंप्लीट एड्रिनल इज एंडोक्राइन,
but here these cells are scattered among the exocrine gland. एक्सोक्राइन सिक्रीटरी यूनिट के बीच में एंडोक्राइन है। तो जैसे और कभी कभी जीआई ट्रैक्ट में आपने देखा होगा कि डिफरेंट हार्मोन्स कौन से होते हैं स्टमक से सिक्रीशन हार्मोन का, जीआई ट्रैक्ट से आपने पढ़ा होगा। जीआई ट्रैक्ट के कोई हार्मोन याद नहीं आ रहे? एनीबडी? फिजियोलॉजी ऑफ पढ़ा है ना आपने, ऑफ डाइजेशन। ओके, गैस्ट्रिन हो गया। और करीब करीब हार्मोन्स निकलते हैं जीआई ट्रैक्ट, पढ़ के आना, ठीक है। ओके, तो जो जीआई ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सम सेल्स, दे आर सिंगल सेल्स कह सकते हैं, दे आर स्कैटर्ड अमंग द म्यूकोसा ऑफ द दिस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो उनको अपन कहेंगे एपोड सेल्स। दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज द यूनिसेलुलर सेल्स, ठीक है, इसलिए इसको बताएं। एक तो एग्जांपल होगी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का, वन इज गॉबलेट, ठीक है, जो कि म्यूकस सिक्रेट कर रही है। दूसरा एग्जांपल होगा एपोड। ये जनरलाइज टर्म है क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोन सिक्रीशन सिक्रेटिंग सेल्स है। लाइक अपन जैसे अगर बोलेंगे जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है, जो रेनिन हार्मोन जो सिक्रेट होता है, ठीक है, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड अंडर द एपोड सेल्स, ठीक है। तो जीआई ट्रैक्ट में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी सेल्स होंगे विच सिक्रेट द हार्मोन, दैट इज कंसिडर्ड अंडर द एपोड। ओके, तो दो एग्जांपल याद होगी यूनिसेलुलर के, वन इज गॉबलेट सेल्स और दूसरा क्या हो जाएगा? एनीबडी? एम आई ऑडिबल? आवाज नहीं आ रही मेरी? इसमें आ रही है। तो दूसरा एग्जांपल क्या अभी बताया? एक तो गॉबलेट सेल्स हो गई यूनिसेलुलर का, दूसरा जेजी सेल्स का बताया था ना, जेजी सेल्स, या सीधे एपोड बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अभी क्या बोलोगे आप लोग? एपोड सेल्स, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म है एमाइन प्रिकर्सर अपटेक एंड डिकॉर्बोक्सिलेशन। जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन के जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, तो दीज आर कंसिडर्ड अंडर द एपोड, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स होगी, ठीक है, और जीआई ट्रैक्ट में होगी, तो इनको अपन एपोड में कंसिडर करते हैं। दिस आर द यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। देन मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ होगा, शायद पढ़ा है इसके बारे में, सिंपल ब्रांच, सिंपल ट्यूबुलर, यस और नो बोलो। मैं फास्ट पढ़ा हूँ, तो पढ़ा है तो नहीं पढ़ा? ओके, तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज aggregation of cells, more than one cells are involved in the secretion, ठीक है, तो hence called as multicellular। तो इसमें आ जाएगा, अच्छा, these glands they may be intraepithelial or large accumulation of cells into the underlying connective tissue। intraepithelium का मतलब होता है कि आप ट्यूनिका म्यूकोसा देखोगे, ठीक है, उसमें एपिथेलियम चल रही, उसके अंदर भी कुछ सेल्स होंगी, ठीक है, मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड्स होंगे, दे सिक्रेट, तो एपिथेलियम में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। और वी कैन से इन द लैमिना प्रोप्रिया, अभी आपको बताऊंगी क्या होता है, लैमिना प्रोप्रिया में रहेंगे, मींस दे आर इंट्रा एपिथेलियम, तो वो सिक्रीट करेंगे, तो हम उनको कहेंगे इंट्रा एपिथेलियम, मतलब एडजेसेंट टू एपिथेलियम होंगे, ठीक है। व्हेन दे गो बियॉन्ड द एपिथेलियम, मतलब वो नीचे चले जाएंगे सब एपिथेलियल एरिया में, जहां उनको ज्यादा एग्रीगेशन बनाना है, ठीक है, सब एपिथेलियल एरिया, कनेक्टिव टिश्यू वाले एरिया में, ठीक है, तो देन दे आर द एक्स्ट्रा एपिथेलियल ग्लैंड्स। जैसे अगर अपन सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे, पैरोटिड है, तो पैरोटिड जो सलाइवरी ग्लैंड है वो ओरल म्यूकोजा के अंदर तो नहीं है क्या पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड? which is inside the epithelium or outside the epithelium? आउटसाइड, ठीक है, तो वो तो ईयर के नीचे आ गई और आउटसाइड चली गई है, ओरल म्यूकोजा में तो नहीं है, तो हेंस कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एपिथेलियम, ठीक है। कुछ जो सेल्स होंगे एपिथेलियम, जो जैसे कि अपन कह सकते हैं इसमें स्टमक में आपने पढ़ा होगा सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, पढ़ा है?
ठीक है, दे आर ऑल्सो गो बियॉन्ड द एपिथेलियल, नीचे की तरफ चली जाती है सब एपिथेलियल एरिया में। तो दीज ग्लैंड्स में बी द इंट्रा एपिथेलियल और एक्स्ट्रा एपिथेलियल ग्लैंड्स, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स की भी बात करें तो, ठीक है। अब इसमें भी हो जाएगी सिंपल, सिंपल मीन्स ओनली स्मॉल डक्ट इज प्रेजेंट एंड दैट पोर देयर सिक्रीशन इन द सरफेस, सरफेस में जाके पोर करेगी, तो एक ही डक्ट टाइप का होगा उसमें और वो सिक्रीशन कर देगी, दैट इज नोन एज सिंपल। कंपाउंड में क्या होगा, हाईली ब्रांच्ड डक्ट सिस्टम इज देयर, ठीक है, तो ब्रांच सिस्टम होगा बढ़िया, और उसमें ग्लैंड में भी प्रेजेंस ऑफ द दिस कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द स्मॉल स्मॉल लोब्यूल्स, ठीक है, वेल डेवलप्ड सिस्टम होगा एक पूरा ट्यूब्यूल का, तो देन इट इज नोन एज कंपाउंड ग्लैंड, ठीक है। तो सिंपल में केवल छोटी सी डक्ट होगी, ओनली सिंगल और मोर देन वन, लेकिन हाईली ब्रांच नहीं होगी इन सिंपल, वेयर इज इन कंपाउंड well developed branch system of the duct present, hence known as compound gland. Can you give the example of, इधर लिखा है क्या, नहीं, हाँ, example of compound gland, anybody? Mammary gland. Yes, Mammary gland. mammary gland, good. Mammary gland is compound tubulo-alveolar gland. और अभी एक एग्जांपल बताया था कंपाउंड ग्लैंड का, अभी बोला था पैरोटिड का, पैरोटिड, ठीक है। तो जितनी भी सलाइवी ग्लैंड्स है दे आर आल्सो कंपाउंड ग्लैंड, ठीक है। अब सिंपल ग्लैंड में क्या होगा, सिंपल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 1 to several secretory units connected to the surface through an मेम्ब्रेन डक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, थ्रू अ स्मॉल डक्ट कह सकते हैं, ठीक है, ये मेम्ब्रेन नहीं होगा, थ्रू अ डक्ट, ठीक। तो इसमें क्या होता है, सिंपल में ओनली स्मॉल डक्ट इज देयर, नो ब्रांचिंग, क्लियर कट बहुत ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि कंपाउंड में होंगे। तो कंपाउंड they drain their secretion in highly branched ducts, ठीक है। एग्जांपल जैसे आप लोगों को बता दिया, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड हो गई, देन दिस सब मैक्सिलरी जिसको सब मैंडिबुलर कहेंगे, या फिर अपन देख सकते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है, उसमें भी मोनोस्टोमेटिक अलग है और पॉलीस्टोमेटिक अलग है, तो पॉलीस्टोमेटिक कंसिडर एज द दिस कंपाउंड ग्लैंड, ओके। अब सिंपल को अपन बांट सकते हैं एज पर देयर शेप, अगर ट्यूब जैसा शेप होगा, जैसे ये ट्यूब है, दिस इज ट्यूब, ठीक है, तो ट्यूबुलर हो गई। ट्यूबुलर में भी आप देखोगे ट्यूब्यूल्स दे आर कॉइल्ड, कॉइलिंग फॉर्म करेंगे और दे ब्रांच, ठीक है। तो ट्यूबुलर ग्लैंड्स इटसेल्फ हैज सो मेनी वेरिएशन, ठीक है, 3 क्लियर कट वेरिएशन दिखेंगे। तो सिंपल, एक तो ट्यूबुलर सिंपल स्टेट हो जाएगी, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो दिस इज नोन एज सिंपल स्टेट ट्यूबुलर, दिस इज सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर, सिंपल तो है, सीधे सीधे जाके बाहर से सिक्रीशन हो रहा है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, सिंपल ट्यूबुलर तो है, बट देयर इज कॉइलिंग टेक्स प्लेस, तो इट इज सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द ट्यूब, ठीक है। इसका नीचे वाला पोर्शन कह सकते हैं, टर्मिनल नहीं कहेंगे, प्रॉक्सिमल पार्ट, ये तो डिस्टल पार्ट कहलाएगा। दिस प्रॉक्सिमल पोर्शन हैज शोइंग द ब्रांचिंग, ठीक है, ये काफी सारी ब्रांच हो गई इस ट्यूब्यूल की, तो इट इज नोन एज सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो ट्यूबुलर ग्लैंड क्या होगा, इसमें द एपिथेलियल सेल्स दे आर अरेंज इन अ ट्यूब लाइक मैनर, ठीक है, ये ट्यूब लाइक मैनर में हो गए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा सिंपल स्टेट ट्यूबुलर, जो स्टेट दिखाई दे रही है, बेस्ट एग्जांपल इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में आप देखोगे क्रिप्स ऑफ लिवर, जो क्रिप्स जाते हैं दे रीच इन द लोअर पार्ट इन द स्टेट लाइन, ठीक है, जैसे स्टेट ट्यूब्यूल, तो स्टेट ट्यूबुलर ग्लैंड्स, बेस्ट एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन। सिंपल, इसमें स्टेट नहीं आना चाहिए बेटा, गलत लिखा है, ठीक है, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है, जैसे स्टेट है ना इधर, तो स्टेट की जगह आ जाएगा सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ओके। तो ये किस एग्जांपल इज स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड कहाँ मिलेगी, where we see the sweat glands, हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो कहाँ होती है स्वेट ग्लैंड, कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्रॉस की बात नहीं कर रही मैं, स्वेट ग्लैंड अपन कहाँ बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट में होगी ना, कौन सा इंटेग्यूमेंट को क्या कहेंगे,
स्वेटिंग होती कहां से हो रही है स्वेटिंग? सिंपल क्वेश्चन पूछा बेटा, कुछ नहीं समझ में आ रहा? मैम हाँ, कहाँ होगी? मैम स्किन डर्मिस। हाँ, स्किन के डर्मिस में, इतनी सिंपल सी चीज पूछ रही है ना। डर्मिस में भी दो पार्ट होते हैं, रेटिकुलर जोन होते हैं, पेपिलरी जोन होते हैं। तो पेपिलरी जोन में मेनली आपको मिलेगा दिस स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। तो एग्जांपल आपको अच्छे से रटा होगा, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, बेस्ट एग्जांपल इज स्वेट ग्लैंड्स, ओके। देन सिंपल, ये भी स्टेट नहीं आएगा, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ठीक है, स्टेट नहीं लिखेगा, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स। तो बेस्ट एग्जांपल द स्टमक, ठीक है। तो स्टमक में आपको पर्टिकुलरली इन द फंडिक रीजन ऑफ द दिस स्टमक वी सी द सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। जबकि पाइलोरिक में और कार्डियक रीजन में सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है, बट इन द फंडिक रीजन ऑफ द विच इज द मेन गैस्ट्रिक रीजन जिसको कहेंगे, जहां एंजाइम सिक्रीट होते हैं, वहां पे सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये दीज आर दी डायग्राम ऑफ द, इसमें पाइलोरिक भी लिखा हुआ है, लेकिन पाइलोरिक रीजन में जनरली हमको मिलेगा कॉइल वाला, ओके। मेनली फंडिक रीजन में we can see the simple branch as well as the uterine glands, they are also simple branched gland, tubular gland, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना? Examples are very important for objective type of questions, okay। ये तो हो गया ट्यूबुलर फॉर्म में। व्हेन दे आर ग्लोबुलर फॉर्म, ये तो राउंड सर्कल फॉर्म में होंगे, ठीक है। मे बी एसिनाई और मे बी एल्वुलार, ठीक है, या तो एसिनार हो जाएगा या एल्वुलार। व्हेन द ल्यूमेन ऑफ दैट बॉल शेप स्ट्रक्चर, एसिनार का मतलब अपन बॉल शेप, 3D की बात करें तो बॉल शेप स्ट्रक्चर है, कैसा है, अ बॉल इज देयर हैविंग अ ल्यूमेन, ठीक है। तो उसमें अगर ल्यूमेन छोटी है तो देन दैट इज नोन एज सिंपल एसिनार, ठीक है। एसिनार मीन्स व्हेन बॉल शेप यूनिट इज देयर। यहाँ पे तो ट्यूब लाइक थी, टेस्ट ट्यूब जो बोलते हैं अपन वैसी होगी, बट हियर बॉल शेप यूनिट आर देयर, ठीक है, राउंड यूनिट आर देयर, ठीक है। तो दीज आर नोन, दीज मे बी कॉल्ड एज एसिनार और एल्वुलार। व्हेन द ल्यूमेन इज लार्ज देन इट इज नोन एज एल्वुलार। एल्वुलार, एल्वुलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गिव मी द एग्जांपल। एल्वुलाई बहुत सुनते हैं आप लोग, लंग्स में। लंग्स में, लंग एल्वुलाई है, ठीक है। तो लंग एल्वुलाई क्यों कह रहे हैं? बिकॉज एल्वुलाई आर, आप क्रॉस सेक्शन तो देखते तो एक सर्कल दिखाई देता है, ठीक है, और बीच में स्पेस है, बट दैट इज नॉट एज सच। अगर आप 3D की बात करेंगे या उसका कास्ट बनाएंगे, ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? वो बॉल लाइक शेप होगा, ठीक है, ब्रांच ब्रांच होती जाएगी और बॉल है, ठीक है, दैट इज हैविंग स्पेस, और उस स्पेस में लंग एल्वुलाई में क्या भरा होगा? एयर भरी होगी, ठीक है। तो एसिनार की बात होगी तो ल्यूमेन इज स्मॉल, उसी बॉल का ल्यूमेन छोटा होगा एसिनार में, और एल्वुलार होगी मींस दैट बॉल इज हैविंग लार्ज ल्यूमेन, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन में हमको केवल क्या दिखाई देगा? एक सर्कल दिखाई देगा, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, तो सिंपल में एसिनार और एल्वुलार में डिफरेंस पता चल गया आप लोग को। व्हेन वी कॉल इट इज एसिनार, व्हेन एल्वुलार, एनीबॉडी? क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सबको रहता है, एसिनार कब बोलेंगे, एल्वुलार कब बोलेंगे, किसको क्लियर है? प्रियंका, अंकित, नहीं समझ में आया? एसिनार कब बोल रहे, एल्वुलार कब बोल रहे? इसमें वो ल्यूमन के साइज में, हाँ, ल्यूमेन के साइज किस में बड़ा होगा, साइज किस में छोटा होगा? एल्वेओलार में बड़ा होगा और एसिनार में छोटा होगा। ठीक है, चलो, ओके, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा सिंपल एसिनार, सिंपल ब्रांच एसिनार, सिंपल एल्वुलार, सिंपल ब्रांच एल्वुलार। तो जो सिंपल एसिनार ग्लैंड्स होती है, ठीक है, दिस सेबेशियस ग्लैंड जो अपन पढ़ते हैं, सेबेशियस ग्लैंड, वेयर वी सी सेबेशियस ग्लैंड, जल्दी से आंसर करो, सेबेशियस ग्लैंड। मैम डर्मिस। हाँ, डर्मिस में, गुड, ठीक है। तो दिस सिंपल एसिनार ग्लैंड्स जो है, दे आर सीन इन द दिस सेबेशियस ग्लैंड आर द एग्जांपल ऑफ दिस सिंपल एसिनार, ठीक है। और सिंपल ब्रांच में भी
अपन एग्जांपल देंगे सेबेशियस ग्लैंड. तो दिस एसिनार ग्लैंड्स जो है दे आर प्रेजेंट इन द दिस example of the sebaceous gland. ठीक है. Then simple alveolar and simple branch generally seen in the respiratory tract of the fowl. ठीक है. Simple alveolar and simple branch alveolar generally seen in the respiratory tract. ठीक है. Not lung तो compound में आ जाएगा. They are seen in the respiratory tract of the lungs of the fowl. Sorry, respiratory tract of the fowl. Okay. जब यूनिट शुरू में जो है दिस प्रॉक्सिमल पार्ट इज एल्वुलर और डिस्टल पार्ट जहां से पोर करना है वो ट्यूबुलर होगा, तो देन कॉल्ड एज ट्यूबुलो एसिनार. और ट्यूबुलर मतलब ऊपर यहाँ पे ट्यूब होगी और नीचे जाके गोल हो जाएगा, इधर ट्यूब और नीचे गोल, तो दैट इज नोन एज ट्यूबुलो एल्वुलर, ट्यूबुलो एसिनार. ठीक है. वो अभी नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाई देगा. तो 3 कैटेगरी क्लियर हो गई. वन इज ट्यूबुलर सिंपल में, अनदर इज एसिनार और एल्वुलर, एंड थर्ड इज ट्यूबुलो एसिनार और ट्यूबुलो एल्वुलर. एग्जांपल और आगे आते जाएंगे. एसिनार. ठीक है. आप देखोगे सिंपल एसिनार ये जा रहा है और नीचे ये राउंड बना हुआ है, ल्यूमेन स्मॉल है. ठीक है. तो कौन सा है? दिस इज सिंपल एसिनार. एसिनार जनरली मैंने बताया कि सिंपल ब्रांच ज्यादा दिखाई देते हैं, सिंपल काफी कम होते हैं. एग्जाम्पल सेबेशियस ग्लैंड. ठीक है. सिंपल एसिनार का एग्जाम्पल है सेबेशियस ग्लैंड. यहाँ पे कंपाउंड भी दिखा दिया, ऑल दो पैनक्रियाज एंड पैरोटिड दे आर कंपाउंड एसिनार. कंपाउंड को अपन अलग से भी पढ़ेंगे. ओके. देन सिंपल एल्वुलर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ चिकन. ओके. देन सिंपल ब्रांच एसिनार, फिर मैंने बता ही दिया था आपको कि सिंपल एसिनार एंड सिंपल ब्रांच एसिनार का एग्जांपल है सेबेशियस ग्लैंड. तो सेबेशियस ग्लैंड इज अवेलेबल इन सिंपल एसिनार फॉर्म एज वेल एज द सिंपल ब्रांच्ड फॉर्म. ठीक है. दोनों का ही एग्जांपल होगा सेबेशियस ग्लैंड. ओके. देन सिंपल एल्वुलर एंड सिंपल ब्रांच एल्वुलर दोनों का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फाउल और चिकन. ओके. तो एग्जांपल दोनों में ही, क्योंकि कुछ फॉर्म सिंपल फॉर्म में होंगे ग्लैंड्स के, सम अदर फॉर्म्स आर इन ब्रांच आर द माइनर सलाइवरी ग्लैंड जो ओरल म्यूकोजा में म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे. ठीक है. सम स्मॉल एग्रीगेशन ऑफ, जैसे अपन लेबियल ग्लैंड्स बोलते हैं, बकल ग्लैंड्स आपको पढ़ाया होगा, पढ़ाया है ना, पढ़ा है स्प्लैंक्नोलॉजी में. Buccal glands are arranged in 3 rows, upper, middle and lower. पढ़ा है स्प्लैंक्नो में? Yes or no? एक तो होती मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स. नेम द मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है. ये तो सिक्रीशन करती है सलाइवा. इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन ओरल म्यूकोसा है ना, चीक में भी होगी. ठीक है. और पैलेट में भी होती है. तो इनके जो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे some aggregation of cells are there. ठीक है. and these cells are also secretory in nature. और छोटी छोटी ducts होंगी. ठीक है. तो these are the minors, these are known as minor salivary glands. ठीक है. exactly नाम नहीं होता, रीजन वाइज इनको अपन कह सकते हैं. लेबियल ग्लैंड्स. लेबियल ग्लैंड्स कहाँ होगी? लिप्स में. तो लिप्स की जो म्यूकोसा होती है उसके अंदर टू मॉइशन द दिस लिप्स. ठीक है. तो उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे सम एग्रीगेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स आर देयर और एपिथेलियल सेल्स आर देयर. ग्लैंड मतलब एपिथेलियल सेल्स. ठीक है. तो उनको अपन कहेंगे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स. तो लिप में है तो बोलेंगे लेबियल ग्लैंड्स. चीक में है तो क्या कहेंगे? एनीबॉडी? चीक्स की म्यूकोसा में होंगे तो चीक मतलब चीक्स में हम लेबियल का होगा. लेबियल लिप्स में, लिप्स की म्यूकोसा के नीचे मिलेंगे. ओके. चीक्स में होंगे तो क्या बोलेंगे उनको? एनीबॉडी? बकल ग्लैंड्स को. ठीक है. पैलेट में होंगे तो मान लो सॉफ्ट पैलेट में, सॉफ्ट पैलेट में है तो क्या बोलेंगे उनको? पैलेटाइन ग्लैंड्स. ओके. तो अपार्ट फ्रॉम लार्ज ग्लैंड्स, ठीक है, जैसे आपने तीनों बताइए, सम स्मॉल एग्रीगेशन ऑफ सेल्स आर आल्सो देयर एंड दे आल्सो पोर देयर सिक्रीशन. ठीक है. टू मॉइशन द दिस ओरल म्यूकोसा, चाहे वो पैलेट से सिक्रीट हो, चाहे वो चीक से हो, चाहे लेबियल से हो. ठीक है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट सिंपल ग्लैंड्स. ठीक है.
नाउ रिगार्डिंग कंपाउंड ग्लैंड्स, ठीक है, तो कंपाउंड का एग्जांपल, बेस्ट हाँ एग्जांपल, मैम, मैम एलपीएम एलपीएम क्लास का टाइम हो गया है। ओके ठीक है। नाउ आई एम लीविंग, ओके।